شیربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں۔ ریزرویشن پالیسی کا از سر نو جائزہ لینے کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی کی رپورٹ تیار، سکینہ اتو۔ پہلگام میں پی ڈی پی کی طرف سے ورکروں کا اجلاس، یاترا کو تحفظ دینے کے لیے لوگ آگے آئیں، محبوبہ مفتی۔ بی جے پی کے سابق صدر رویندر رینا نے سیاحوں کو واپس پہلگام لوٹنے کا دیا پیغام، سیاحوں سے کی بات چیت۔ اور جموں کشمیر میں گرمی سے لوگ پریشان، کٹھوا میں پارہ 46 ڈگری پار۔ جون کے آخری یا پھر جولائی کے پہلے ہفتے میں مونسون کے دستک دینے کی امید، محکمہ موسمیات۔ اور سبھی جموں کشمیر کابینہ کی ذیلی کمیٹی جس کو گزشتہ سال تشکیل دیا گیا تھا نے جموں کشمیر میں موجودہ ریزرویشن پالیسی کے خلاف شکایات کا جائزہ لینے کے لیے اپنی رپورٹ کا مسودہ تیار کیا ہے، جس کو کابینہ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ یہ اعلان وزیر برائے تعلیم اور صحت سکینہ اتو، جو اس کابینہ سب کمیٹی کی سربراہ ہیں، نے آج ایکس پر اپنے ایک پوسٹ کے ذریعے کیا۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹ 6 ماہ کے اندر تیار کرنا تھی اور تیار ہو چکی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ برس مارچ مہینے میں لیفٹیننٹ گورنر منوہر سنہا نے جموں کشمیر ریزرویشن ایکٹ 2004 میں ترمیم کی، جس سے سرکاری ملازمتوں میں ریزرویشن کو 43% سے بڑھا کر 70% کر دیا گیا تھا۔ اسی پالیسی پر احتجاجی مظاہرے ہوئے اور بعد ازاں جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے متنازع پالیسی کا جائزہ لینے کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دی، جس کو اپنی رپورٹ جمع کرنے کے لیے 6 ماہ کا وقت دیا گیا تھا۔ اب ایک اور موضوع۔ پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ پہلگام کے لوگ شری امرناتھ جی یاترا کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے لوگ شری امرناتھ جی یاتریوں کا اسی طرح استقبال کریں گے جس طرح وہ پہلے سے کرتے آئے ہیں۔ موصوف نے ان باتوں کا اظہار آج پہلگام میں ایک تقریب کے حاشیے پر نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔ میں حادثہ ہوا، اس کے بعد حالات بدل گئے، ٹورزم ایک دم سے ٹھپ ہو گیا، جس کی وجہ سے پہلگام کے 10,000 گھوڑے والے، یہاں کے ہوٹل والے ہو، یہاں کے دکاندار ہو، یہاں کے ٹیکسی والے ہو، آٹو والے ہو یا سومو والے ہو، سب کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ مگر میرا آج یہاں آنے کا خاص مقصد یہ تھا کہ امرناتھ جی کی یاترا آنے والی ہے، اس لیے میں نے جو امرناتھ یاترا کے روٹ پہ جتنے بھی ہمارے ورکر ہیں ان کو یہاں بلایا تھا، ان کو یہ بتایا کہ جو امرناتھ کی یاترا ہے اس کی رکھوالی یہاں کے لوگوں نے کرنی ہے، پہلگام کے لوگوں نے کرنی ہے، تاکہ یہ یاترا اچھی طرح گزرے اور اس کے بعد لوگوں کو اعتماد دوبارہ بحال ہو جائے اور ٹورزم دوبارہ شروع ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے گزارش کی یہاں کی سرکار سے اور گورنر صاحب سے کہ یہ جو پہلگام میں آپ نے پارکس بند کر کے رکھے ہیں، چندن واڑی بند ہے، آڑو بند ہے، پیتا والی بند ہے، اس کو کھول دیجیے تاکہ جو کشمیر کے لوکل ٹورسٹ یہاں آتے ہیں وہ ان جگہوں پہ جا سکے اور یہاں کے لوگوں کے، گھوڑے والے کی، ٹیکسی والے کی، ہوٹل والے کی کوئی کمائی ہو سکے، کیونکہ یہ بینک کے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ میری گزارش ہے، شاہین بورڈ کے جو انتظام دیکھتے ہیں کہ آپ نے بولا ہے ایک آدمی صرف ایک گھوڑا لائے گا، یہاں ہر پہلگام میں گھوڑے والے کے پاس ایک آدمی کے پاس 2 سے زیادہ گھوڑے ہیں۔ اس کو آپ تبدیل کر لیجئے، جس کے پاس جتنے گھوڑے ہیں اس کو اتنا گھوڑا اس یاترا میں لانے کی اجازت دیجئے۔ اور دوسرا، ہم چاہتے ہیں کہ امرناتھ یاتری آ جائے، جیسے سینکڑوں سالوں سے کشمیری لوگوں نے ان کا استقبال کیا ہے، انشاءاللہ اس سال بھی استقبال ہوگا، ان کی بھرپور خدمت کی جائے گی اور وہ بالکل صحت و صحیح سلامت وہاں سے بھی آئیں گے اور یہاں سے بھی واپس آئیں گے۔ بائسرن واقعے کے بعد ہزاروں گھوڑے بان، ہوٹل والے، دکاندار، ٹیکسی والے اور دیگر متعلقین کے معاشی حالات خراب ہو چکی ہیں۔ پہلگام میں سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا اظہار خیال۔ اس دوران بی جے پی کے سینئر لیڈر اور سابق صدر رویندر رینا بھی آج پہلگام میں موجود رہے اور وہاں بنگال سے آئے بعض یاتریوں سے بات چیت کی۔ موصوف نے پہلگام کے ایمبیسڈر کے طور پر ملکی سیاحوں سے اپیل کی کہ وہ جوک در جوک جموں کشمیر آئیں اور یہاں قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہو جائیں۔ انہوں نے وہاں پر موجود سیاحوں سے بھی اس بارے میں مثبت پیغام ملک کے کونے کونے تک پہنچانے کی بات کی۔ کچھ دن تو گزارو کشمیر میں، کچھ دن تو گزارو دھرتی کے سورگ میں، کچھ دن تو گزارو اس جنت میں، کچھ دن گزاری ہے کشمیر میں۔
की बात है कि वादी कश्मीर में फिर से रौनकें आना शुरू हो गई हैं। फिर से पहलगाम में खुशहाली के वो मंजर यहाँ नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे देश से, हिंदुस्तान के कोने कोने से टूरिस्ट सैलानी फिर से वादी कश्मीर में आ रहे हैं। और हमारे साथ आईटी चंदा दी और दादा बंगाल से, कोलकाता से आए हैं और एक पैगाम लेकर आए हैं कि कुछ दिन तो गुजारो कश्मीर में, कुछ दिन तो गुजारो धरती के स्वर्ग में। और दीदी का पैगाम हिंदुस्तान के नाम। हम यहाँ आए हैं, बहुत बहुत खुश है। आदमी तो इतने अच्छे हैं, हंसमुख है, जैसे सुंदर है, जगह भी उतना सुंदर है, उन लोग का हैंडीक्राफ्ट सब कुछ बहुत अच्छा है। सब टूरिस्टों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने आप लोग आओगे तो लोग भी हम लोग का एक साथ हो जाएगा ना। सब हम लोग एक साथ होना है और उन लोग का अच्छा भी होना चाहिए ना, उन लोगों का। आपको कैसा लगा दीदी कश्मीर? बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन लोग का भी कुछ प्रोग्रेस होना चाहिए तब, और ये प्रॉब्लम कुछ कभी नहीं। और आपको यहाँ का खूबसूरती कैसा लगा दीदी? बहुत सुंदर। और आपका क्या पैगाम है हिंदुस्तान को? सब आइए यहाँ, घूम के जाइए। ये सड़क है, हम लोग बोलते हैं कश्मीर, सड़क में आइए आप। I'm एसबी चंदा, मैं बंगाल से आया हूँ। आप सारे हिंदुस्तान का आदमी को हम लोग बताने चाहते हैं, आप लोग आइए, टूरिस्ट कोई डर नहीं है कश्मीर में। हेवन फॉर टूरिज्म, ये टूरिज्म यहाँ पे पहलगांव आइए, श्रीनगर आइए, गुलमर्ग आइए, जहाँ पे भी आइए। पहलगांव जैसा है हम स्विट्जरलैंड में भी नहीं देखा, इतना बढ़िया जगह है। अरे सारे टूरिज्म को कोई डरने का नहीं है, आ जाइए। हम लोग आए हैं, हम लोग कोई बात नहीं, सारे आदमी हम लोग का ख्याल करते हैं। आप लोग आएंगे, सबके लिए रोटी रोजी भी रहेंगे, सबके लिए हमारा भी खुश होगा, यहाँ के आदमी के लिए भी बहुत ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। हम लोग चाहते हैं यहाँ पे टूरिज्म डेवलप करें, यहाँ पे इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, जो भी एग्री का, कपड़े का, गारमेंट्स का कोई भी इंडस्ट्री आ जाए। कोई नॉन पोल्यूशन होता है यहाँ पे, पोल्यूशन नॉन पोल्यूटेड इंडस्ट्री भी आ जाए, सबका रोजगार ही अच्छा हो, सबका रोजगार इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए। सो हमारा जिम्मेदारी है हिंदुस्तान का, हमारे इंडिया का जो जिम्मेदारी है आदमी का, यहाँ पे आइए, यहाँ पे टूरिज्म डेवलप कीजिए, यहाँ का आदमी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए। कुछ दिन गुजारिए कश्मीर में। बीजेपी के साबिक सदर रविंद्र रैना ने पहलगाम से सयाहों को वापस आने की अपील। समीर गुरेज से लोग शिकायत कर रहे हैं कि अभी तक गुरेज को टूरिज्म के लिए नहीं खोला गया है, जबकि इस बारे में कई बार ऐलानात भी हुए थे। हमने गुज़श्ते दिनों में एक खबर नश्र की थी जिसमें एमएलए गुरेज और साबिक वजीर नजीर अहमद गुरेजी ने बताया था कि वो चीफ सेक्रेटरी से इस बारे में मिले हैं और जल्द ही कोई मजबूत नतीजा सामने आएगा। हमने आज फिर नजीर गुरेजी साहब से फोन पर बात की और पूछा कि उस मीटिंग का क्या हुआ था। जहाँ तक टूरिज्म का सवाल है, उसमें शक ही नहीं कि गुरेज को टूरिस्ट नहीं जाने से काफी नुकसान हुआ। वहाँ खाली टूरिस्ट यहाँ का ही नहीं जाता है, आउटसाइड ऑफ स्टेट से लोग आते हैं। और बड़े अफसोसनाक है कि गुरेज को अभी तक इन्होंने टूरिज्म, मुझे पिछली बार जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने वादा दे दिया था कि कुछ ही दिनों में हम ये रूट खोल देंगे, गुरेज को टूरिज्म के लिए ओपन कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मैंने आज सुबह डिविजनल कमिश्नर साहब से बात की, उन्होंने कहा मुझे रिपोर्ट नहीं मिला था जो डीसी बांदीपोरा से आना था, एसएसपी बांदीपोरा से। तो मैंने डीसी बांदीपोरा से बात की, उन्होंने कहा हमने रिपोर्ट भेज दी है। और डिविजनल कमिश्नर साहब ने वो रिपोर्ट आज ही हासिल की और आज चीफ सेक्रेटरी साहब से मैं फिर मिला। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस हफ्ते के आखिर तक गुरेज जो है वो ओपन किया जाएगा टूरिस्ट के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ अगले हफ्ते से टूरिस्ट जो है गुरेज जाना शुरू कर देंगे। नजीर अहमद गुरेजी साहब, शेयरबिन के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद रखेंगे कि गुरेज को जल्द ही सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। अब एक और मौजू। जम्मू कश्मीर सरकार ने सिविल इंतजामिया में बड़े पैमाने पर अफसरान का रद्द-बदल किया है। 134 केस अफसरान के तबादले और तकर्रुरिया अमल में लाई गई हैं। काबिल जिक्र है कि मोहम्मद रऊफ रहमान को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कोकरनाग के तौर तैनात किया गया है। मकामी लोगों ने मोहम्मद रऊफ रहमान की तैनाती पर मसरत का इजहार किया है। अब एक और मौजू। समीन गुज़श्ते दिनों वादी कश्मीर के साथ साथ डोडा खित्ते में भी तेज हवाएं, बार बार की ज्यादाबारी हुई और साथ ही बारिशों से खड़ी फसलों में बागात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा और यूं किसान काफी मायूस हैं। ये एक बार नहीं, खित्ते में इस साल बार बार हुआ और माजी में भी इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। साबिक वजीर अब्दुल मजीद वानी का कहना है कि मौसमी मार की वजह से जहां खित्ते के किसानों की कमर टूट गई है, वहीं बार बार की बारिश से जमीन धंसने और सड़कों पर मिट्टी के तूदे और पत्थर गिराने के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं।
मगर हुकूमत की तरफ से मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के लिए कोई पॉलिसी तरतीब नहीं दी जा रही है, न ही खित्ते में बार बार की मौसमी मार के नुकसानात से बचने या बचाने के लिए किसी तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने खित्ते में बेरोजगारी का मसला उठाते हुए कहा कि खित्ते के लोगों की माशी हालत मुस्तकम बनाने के लिए भी खास तरह के इकदाम की जरूरत है। डोडा असवाल जितना भी है, इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम ये कि एक अनशेड्यूल बारिशें हुई जिनसे सारी तबाही हुई, लैंडस्लाइड्स आ गई और फ्रूट सारा खत्म हो गया और जिनकी लोकल प्रोडक्शन थी जो वो भी खत्म हो गई। और ऐसे हालात, ऐसे तूफान हैं एरिया के अंदर कि बहुत सारी कोशिशें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होती हैं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं आज हैंड टू माउथ हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई काम है, न कोई मजदूरी है, न कोई मजदूरी जो की थी उन्होंने मनरेगा के थ्रू वो पैसा भी अभी तक लोगों को मिला नहीं है। बिजली का संकट है, पानी का संकट है, रोड्स का संकट है, बहुत सारी ऐसी जरूरियात जिंदगी जो है लोगों की वो पूरी नहीं हो रही है। और ये जो नागहानी आफात के लपेट में अक्सर और पेशतर असवाल डिस्ट्रिक्ट डोडा आता है, जिसमें अनशेड्यूल बारिशें होती हैं, कभी सुनामी होती है, कभी ड्राट होता है, कभी एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं। हर रोज एक्सीडेंट इन रूट्स पे होते हैं, तो इसका कोई कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग नहीं हुई है। सरकार थी, इसमें सरकार को चाहिए था कि इस बारे में एक अच्छी सोच बनाकर और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लोगों को कम से कम, उन लोगों को भी जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको भी बुलाना चाहिए था हम लोगों को छोड़कर, ताकि वो कोई न कोई योगदान देते। और लोकल लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उनका तजुर्बा हासिल करने की जरूरत है, जिससे ये जो आजकल सिचुएशन हुई है, ये मुश्किलात जो हैं, ये किसी इनका अजाला किया जाए। जो बेवक्त की बारिशें हुई, जालाबारी हुई, तो उन किसानों के लिए आप क्या कुछ मुतालबा कर रहे हैं? मैं कहता हूँ कि उनको कम से कम कोई इंसेंटिव दिया जाए, एक हेल्प होती है जो लोगों के नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार को करना चाहिए। हम मानते हैं इस वक्त पता है सरकार के सामने भी मुश्किलात हैं, लेकिन कहीं न कहीं से सरकार एक जिम्मेदार है जिनका लोगों का एक जो भरोसा है वो सरकार के ऊपर होता है। और सरकार जो बनी है, और यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी एक रोल है, इन लोगों को मिलके ऐसे मुश्किलात का हल निकालना चाहिए और लोगों को सहायता घर घर मिलनी चाहिए और इनमें कोई न कोई सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट इनको मिले, ताकि ये लोग जो बेचारे नुकसान ज्यादा लोग हैं, यकीन करें आपके हर इलाके के अंदर वो कोई जगह नहीं, वो कोई इलाका नहीं, वो कोई कस्बा नहीं, वो कोई गाँव नहीं, वो कोई क्रिया नहीं जहाँ पे लैंडस्लाइड्स नहीं आई और बारिश नहीं हुई, अनशेड्यूल बारिश हुई और उसके साथ जो अपना नुकसानात मेवाजात के हुए। तो ये सब बहुत सारी किसी जगह लाइट आपको चले गई, लाइट 8-8 दिन इलाकों में नहीं आती है, तो बड़े बहुत सारे मुश्किलात हैं इसके ज़िम्मन में सरकार को। और मैं चाहता हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को मिलके ये इसका एक हल निकालना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर उम्मीदें हैं लोगों, क्योंकि एक लोगों ने अपनी मर्जी से सरकार बनाई है और चीफ मिनिस्टर साहब को वो काम करते हैं, काम करने वाले हैं, उनको करनी चाहिए। अब अगर ये मसले हल नहीं होंगे, लोग कहाँ जाएंगे, लोगों के पास कौन सा रास्ता, कहाँ जाएं, क्या करें। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, ये अमल जो है इसका जरूरी करना है, ताकि लोगों को जो नुकसानात हैं, जो हालात हैं, उनसे जो दो चार हैं वो कम से कम इसका अजाला हो। डोडा खित्ते की तरफ हुकूमत को खुसूसी तवज्जो देना होगी, बात कर रहे थे साबिक वजीर अब्दुल मजीद वानी। सामीन इतलात के मुताबिक एक बैंक एटीएम गार्ड वसीम अहमद साकिन न्यू कॉलोनी एलियालपुरा शोपियान की लाश नाला अरबल से बरामद की गई है। वसीम अहमद इतवार को अरबल सैर तफरी की गरज से गए थे, जहां वो लापता हुए थे। इस दौरान माछा मतराल में एक सुमो गाड़ी उलट जाने से इसमें सवार 7 अफराद
जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब एक और मौजू, दूरदर्शन श्रीनगर की प्रोग्राम सरबराह राबिया रसूल की वालिदा और आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक ब्रॉडकास्टर और हमारे साथी ज़ोहर जाहिद की वालिदा निस्बती का आज इंतकाल हुआ। मरहुमा को सैकड़ों अजीज व अकारिब की मौजूदगी में मजीद बाग श्रीनगर में सुपर्द खाक किया गया। मरहुमा के इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी, सहाफती और अदबी तंजीमों ने दुख और अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार कुंभी से ताज़ियत की है। रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन और सागर कल्चर फोरम चुकरपट्टन ने भी मरहुमा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है और सगोरान से ताज़ियत की है। इस दौरान आज दूरदर्शन श्रीनगर और आकाशवाणी श्रीनगर में अलग अलग ताज़ियती इजलास मुनक्कद हुए, जिस दौरान मरहुमा की वफात पर दुख का इजहार करते हुए सगोवार कुंभे खासकर राबिया रसूल और ज़ोहर जाहिद से ताज़ियत की गई। यूनुस परी ने इतला दी कि बडगाम जिले के चार शरीफ इलाके के कंदजन गाँव में आवारा कुत्तों ने लोगों पर हमला कर दिया है और कम से कम 12 अफराद बशमूल कुछ बच्चे जख्मी हुए हैं। समीन मुमताज अदीब, शायर, नक्काद, सहाफी और खतूत निगार अब्दुर्रहमान आजाद की 29वीं बरसी 14 जून को मनाई जा रही है। इस सिलसिले में स्काई लार्क पैरामेडिकल कॉलेज पुलवामा में एक तकरीब मुनक्कद होगी। इस तकरीब का मकसद उर्दू अदब और सहाफत के मैदान में अब्दुर्रहमान आजाद की गिरा कदर खिदमात को उजागर करना और उनके फिक्री और तख्लीकी विरसे को खराज अकीदत पेश करना है। समीन जुमेरात 12 जून को वादी भर में सिख मत के छठे गुरु हरगोबिंद जी महाराज का प्रकाश पूरब मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में वादी के तमाम गुरुद्वारों में खुसूसी दीवान का एहतमाम होगा। सबसे बड़ा दीवान गुरुद्वारा छठी पातशाही रैनावारी में मुनक्कद होगा, जिसमें सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस तकरीब में गोल्डन टेम्पल अमृतसर से भी बड़ी तादाद में प्रचारक तशरीफ ला रहे हैं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस अकलियती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आजाद ने श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज के 430वें योम पैदाश के सिलसिले में तमाम गुरुद्वारों, खासतौर गुरुद्वारा छठी पातशाही में जरूरी इंतजाम की अपील की है। सामिन उड़ी में पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासिर हुए लोगों का इल्जाम है कि हुकूमत की तरफ से उनके बाज़ाबाद कारी के लिए अभी तक मौसर इक़दाम नहीं किए गए हैं। इस दौरान मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों की तरफ से उड़ी आकर नुकसानात का जायजा लेने और मुतासिरीन के साथ हमदर्दी जाहिर करने का अमल भी जारी है। आज CPIM के कौमी जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में मेंबरान पार्लियामान का एक वक्त भी उड़ी गया और वहां मुतासिरीन से बातचीत की। इस वक्त में CPIM के मकामी लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी शामिल थे। मुकम्मल रिपोर्ट जफर इकबाल से। आज CPIM के मुल्की सतह के एक वफद ने सरहदी कस्बा उड़ी का दौरा किया और गुज़िश्ता माह पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। वफद में शामिल CPIM के जनरल सेक्रेटरी MA बेबी, CPIM के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली कोलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के अलावा 6 रुकन पार्लियामेंट ने उड़ी के अपने दौरे के दौरान इस्लामाबाद, लगामा, बांडी, राजनवानी जाकर हालिया गोलाबारी से हुए नुकसानात का जायजा लिया और मुतासरा कुंभों से भी मुलाकात की। दौरे के दौरान लोगों ने वफद के सामने अपने मसाइल भी रखे। CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनका यहाँ आने का मकसद सिर्फ यह है कि वो यहाँ के लोगों के दुख में शरीक हो सकें। उन्होंने कहा कि मुल्क बेरोजगारी, महंगाई के बोझ तले दबा है, मगर सरहदी इलाकों के लोग हिंद पाक तनाव की वजह से गोलाबारी की परेशानियों में मुब्तला हैं। उन्होंने बताया कि सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग गोलाबारी से मुतासर हैं और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहदी इलाकों में ज़ेर ज़मीन बैंकर तामीर किए जाने चाहें। उन्होंने कहा घरों के अलावा स्कूलों, अस्पतालों और दफ्तरों के नज़दीक ज़ेर ज़मीन बैंकर तामीर किए जाएं ताकि गोलाबारी के दौरान इनमें पनाह ले सकें। इन्होंने मजीद कहा कि मरकजी सरकार ने जो मुआवजा गोलाबारी से तबाह हुए मकानात के लिए तय किया है वो नाकाफी है। सरकार को चाहिए हुकूमत को बढ़ाएं ताकि लोग दोबारा से अपने मकानात तामीर कर सकें। उन्होंने बताया कि यहाँ पर आए हुए मेंबर पार्लियामेंट यहाँ के लोगों की आवाज पार्लियामेंट में उठाएंगे और हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करेंगे। ये थे उड़ी से जफर इकबाल। शेरबीन जारी है आपका खैर मकदम। मारूफ अदाकार और कलमकार गुलफाम बारजी के जवां साल भांजे तजमुल हुसैन की हादसाती मौत हुई है और उनकी मौत पर कई सकाफती और समाजी अंजुमनों ने दुख का इजहार करते हुए सोगवारान से ताज़ियत की है। तजमुल हुसैन की इज्तिमाई फातह खानी 13 जून 2025 को आबाई कब्रिस्तान वाक़ चनबल पट्टन में सुबह 5:30 बजे अंजाम देगी। बाद में इमाम बारगाह चकपोरा चनपटन में मरहूम के साल साहब के लिए
दिन भर जिक्र अज़कार की मजालिस का एहतमाम रहेगा। समी जम्मू कश्मीर में इन दिनों शिद्दत की गर्मी महसूस हो रही है। जम्मू खित्ते में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिससे लोगों का घरों से आना जाना मुश्किल हो चुका है। शदीद गर्मी के बायस बिजली और पानी की भी खित्ते में कमी पाई जा रही है। जम्मू से हमारी नुमाइंदे के मुताबिक दिन के दौरान बाजारों में मुकम्मल सन्नाटा छाया रहता है और बाजारों में शाम के बाद ही रौनक बहाल होती है। इधर वादी कश्मीर में भी आजकल खासी गर्मी दर्ज हो रही है। श्रीनगर में आज दर्जा हरारत 33.3 डिग्री, काजीगुड़ में 33.6, जबकि कुपवाड़ा में 32.5 दर्ज हुआ। इस दौरान महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक मौसम में अगले 4 दिन तक किसी बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं। अलबत्ता 14 और 15 जून को चंद एक इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। ऑलरेडी अभी जैसे एक्सपेक्टेड है 13 तक वेदर जो है ड्राई रहेगा और टेम्परेचर भी इस चीज जो है काफी ज्यादा इसमें इजाफा देखा गया सिग्निफिकेंट राइज। और कमिंग डेज में खासकर अभी 14-15 के आसपास कुछ एक जगहों पे हल्की बूंदाबांदी के चांसेस हैं, लाइट रेन, कुछ एक जगहों पे थंडर एक्टिविटी गस्टिंग विंड चलने के चांसेस हैं, खासकर 13, 14, 15 के दरमियान, खासकर बाद दोपहर या अर्ली मॉर्निंग। बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है लगभग 20 जून तक। तो जो हॉट एंड ड्राई वेदर है ये मोर और लेस रहेगा अभी लगभग 20 जून तक। अभी का जो आप टेम्परेचर देख रहे हैं वादी कश्मीर की अगर बात करें, क्या ये मामूल के मुताबिक है या आप ज्यादा लग रहा है आपको ये? बिल्कुल, अभी जैसे लास्ट ईयर भी जैसे जुलाई के महीने में या इवन जून के महीने में भी 34, 35, 36 तक भी टच, तो उसको देखते हुए मौसम भी अभी ड्राई चल रहा है और उसके साथ साथ मानसून जो ऑनसेट होता है वो जो मानसून की जो हवाएं हैं साउथ वेस्ट मानसून वो भी ऑनसेट अभी नहीं हुआ है। तो जब तक मानसून ऑनसेट नहीं होता है गर्मियां जो है बरकरार रहेंगी और मामूल से लगभग 4-5 डिग्री, कुछ एक जगहों पे 6-7 डिग्री टेम्परेचर जो है ऊपर रहने की चांसेस। जम्मू के बाज़ इलाकों में 46 डिग्री तक भी टेम्परेचर गया है, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो मानसून की एक्सपेक्टेशन कब तक है? मानसून का अभी फिलहाल 20 तक तो कोई ऐसे इंडिकेशंस नहीं है। अब देखते हैं जब ऑनसेट बाकी जगहों पे होता है, इवन सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया तक मानसून जो है पहुंच चुका है, मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और जो साउथ का बेल्ट है इन सारी जगहों पे मानसून ऑनसेट हो चुका है। तो जो फ्रेश रिवाइवल होगा मानसून का तो लगभग अभी हफ्ता लगभग ऐसा कुछ टाइम लगेगा, 1 हफ्ता 10 दिन तक जम्मू कश्मीर के अंदर। ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। सभी शिद्दत की गर्मी में शहर अनंतनाग के दूनी पावा इलाके में म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग की जानिब से रिहायशी बस्ती के करीब कूड़ा करकट जमा कराने पर मकामी लोग सरापा एहतजाज हैं और इस हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट सुनते हैं इस तारीख की ज़बानी। दोनी पावा अनंतनाग में कूड़ा करकट की डंपिंग पर मुकामी लोगों का शदीद एहतजाज। सेहत आमा को खतरा, कुर्बानी के जानवरों की खाले और गंदगी बीमारियों का सबब बन गई। तफसीलात के मुताबिक शिद्दत की गर्मी में शहर अनंतनाग के डोनी पावा इलाके में म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग की जानिब से रिहायशी बस्ती के करीब कूड़ा करकट जमा करने पर मुकामी लोगों ने शदीद एहतजाज किया। मकीनों का कहना है कि महकमा बल्दिया ने इनकी शिकायत को यकसर नजरअंदाज कर रहा है और इनकी सेहत को शदीद खतरे में डाल दिया है। एहतजाजी मुजाहिरों ने इल्जाम लगाया है कि पहले कूड़े का डैम्प रिहायशी इलाके से 1 किलोमीटर दूर रखा गया था, लेकिन अब इस बस्ती के बिल्कुल करीब मुंतकिल कर दिया गया है। इनका कहना है कि कुर्बानी के जानवरों की खालों और दीगर गंदगी के ढेर की वजह से इलाके में बदबू फैल गई है और मकीन खासकर बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो पूरी करो। मुकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि कूड़ा करकट के इस डैम्प को फौरी तौर पर किसी गैर रिहायशी इलाके में मुंतकिल किया जाए ताकि लोग सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके। इस बीच म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुहेल अहमद मलिक ने यकीन दिलाया कि बस्ती से फौरी तौर पर कूड़ा करकट हटाया दिया जाएगा। उन्होंने इस मसले की जिम्मेदार बैज अफराद पर आयद की है जो रात के वक्त गंदगी लाकर बस्ती के करीब फेंक देते हैं, जिसके नतीजे में पूरा इलाका मुतासिर हुआ है। ईद की वजह से थोड़ा वेस्ट जनरेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारा जो डंपिंग साइट है प्रेजेंटली वहाँ पे बोटलनेक हो गया। बट मैं आपको एश्योर करता हूँ विद इन अ पीरियड ऑफ 1 और 2 डेज उस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। साथ ही साथ जो दोनी पावा का जो डंपिंग साइट है दैट इज़ टेम्पररी देयर।
अभी जो हमारा प्लांट बनने वाला है दैट इज इन उरनहाल, उसका EIA चल रहा है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. वी आर वेरी होपफुल दैट विल गेट थ्रू इट विद इन 2 months. आफ्टर दैट हमारा फुल फ्लेज्ड साइंटिफिक प्लांट होगा उरनहाल में, दैट विल कैटर अनंतनाग, बिजबिहारा एंड मटन. उसके लिए सभी तैयारियां हम कर रहे हैं एंड वी आर वेरी होपफुल दैट वी विल बी शिफ्टिंग दिस दोनी पावा साइड टू दैट ओनली. वहां पे 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट होगा और दोनी पावा साइड पे जो लिगेसी वेस्ट है उसको हम क्लियर करके देंगे. अभी मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने वहां पे 27,000 मेट्रिक टन ऑफ लिगेसी वेस्ट क्लियर किया है और जो भी वहां पे लिगेसी वेस्ट है उसको हम इन नियर फ्यूचर क्लियर करेंगे. आपने इस तारीख की रिपोर्ट सुनी. शोपियान से फयाज वानी ने खबर दी है कि कबायली उमूर की वजारत के तहत मुल्क गिर धरती आबा जन भागीदारी अभियान के एक हिस्से के तौर पर जिला इंतजामिया शोपियान 15